السلام علیکم حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیا حالات ہیں؟ بس خدا کا شکر ہے، آپ سنائیے حضرت؟ بہت بڑھیا چل رہا ہے آپ کا معاملہ تو۔ اچھا، ہاں بس فائدہ ہو لوگوں کو، ہاں، بس دین کی خدمت ہونا چاہیے، لوگوں کا دماغ سلجھ جائے۔ وہ آپ کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ الجھا رکھا ہے نا بہت زیادہ۔ یہ کتابوں میں بس بتاتے یہ لکھا وہ لکھا، ان کتابوں کو کوئی پڑھتا بھی نہیں نہ، ان کتابوں کا لوگوں کو علم ہے، بس یہ کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ کتاب میں وہ لکھا ہے، یہی کہہ کے لڑاتے ہیں۔ کئی آوازیں آ رہی ہیں حضرت، کیا آپ کیا وہ بھیڑ گاڑی میں میں بیٹھے؟ بیٹھے تھے، ہم جا رہے تھے ایک جگہ، اچھا مراد اچھا آباد جا رہے ہیں، اچھا، کاشی آوازیں پور آ سے۔ رہی ہاں، اچھا وہ تو اکیلے ڈرائیور صاحب کی آواز آ رہی ہے، ایک اور ان کے ساتھ میں اچھا، یو پی میں ہی گھوم رہے ہیں تو آپ؟ ابھی یہاں کاشی پور سے ہم جا رہے ہیں مراد آباد۔ اچھا کاشی پور اچھا، سائڈ میں نکسر والا سے نکلے، کاشی پور کے پاس میں ہے ہاں ہاں ہاں، نکسر والا، وہاں سے مراد آباد۔ اچھا اچھا، اور باقی کیسے حالات ناسک میں ہو گیا؟ ناسک میں ہی ہے نا؟ آپ کا چلو راؤنڈ کچھ ہوا دن نہیں بعد کیا ادھر؟ دیکھنا، ناسک میں 2 سال بعد دیکھنا ماحول چینج ہو جائے گا، دیکھ لینا۔ ہاں، ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے اثر ہو رہا ہے۔ نہیں ہو جائے گا چینج، کیونکہ یار بھگا چکر مت پڑو۔ نہیں، یہ فتنوں کا معاملہ ہے سب، کیا فتنوں میں پڑ کے مطلب نہیں ہے نا کچھ۔ تو ہم غیروں کی نظر میں ویسے ہی کمزور ہو چکے ہیں، ہوں، یہ اور ہمیں کمزور کر رہے ہیں، آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ہاں پھر نہیں میں بات کر رہا ہوں، نہیں تو انہیں ڈسٹرب ہوگا بھی۔ ہوں، وہ جو ہے فتنوں کے چکر میں، یہ فتنے ہی ہیں صاحب۔ بالکل بالکل اب فتنے کی۔ ناسک میں تو بہت خطرناک معاملہ ہے جہاں آپ رہتے ہو، ہاں بالکل۔ وہاں تو اتنا خطرناک ہے، کوئی آ جائے تو بھگا بھی دے، نماز نہیں پڑھنے دے کے۔ ہوں، لیکن کچھ دن بعد ان کو اللہ عقل دے گا، یہ کہے گا کہ یار اگر عرب والے بھی اگر ہمیں بھگان لگیں گے تو ہمارا تو پھر نماز ہی نہیں ہو پائے گا، حج بھی نہیں ہو پائے گا۔ صحیح بات ہے۔ جیسے یہ کر رہے ہیں ایسے عرب والے کریں، کہاں سے آؤ، ناسک سے نکلو، باہر نکل جاؤ یہاں سے، چلو تو پھر صحیح کیسے حج بات ہے، کر پائیں گے شادی؟ صحیح بات ہے۔ وہ بھی اگر عرب والے بھی یہی پوچھیں کہاں سے آؤ، کون ہو، تمہاری کیا جانکاری، کیا تمہارا وہ ہے، فرقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہوں، تو پھر تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا صاحب۔ صحیح بات ہے، ہیں؟ صحیح بات ہے۔ لیکن عرب میں ایسا نہیں کرتے، وہ لوگ کسی سے نہیں پوچھتے کیا امریکہ سے آئے، کیا افریقہ سے آئے، کیا کہیں سے، پوری دنیا سے آتا ہے، کسی سے نہیں پوچھتے تم کون ہو۔ ہوں، ارے وہاں آئے گا تو مسلمان ہی تو آئے گا حج کرنے، اور کون آئے گا صاحب؟ بالکل اب بالکل، اس سے کیا پوچھنا ہے کہ کون سے فرقے سے صحیح حج بات کرنے ہے، آیا، مسلمان ہے بس۔ صحیح اور بات ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو یہ ہمارا نام دیوبندی بریلوی کیوں رکھا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ قرآن جب میں اللہ ہمارے سامنے قرآن حدیث سے سب کچھ موجود ہے۔ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، صحیح بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ ہوں، لیکن زبردستی دیوبندی بریلوی نام لگوا رہے ہیں۔ ارے یہ دیوبند تو والے تو یہ، ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ، ہاں اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کے مرو۔ بے شک، دیکھو اولیاء اللہ نے دین پھیلایا ہے، بالکل، حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری نے، حضرت شیخ بدر الدین قطب المدار مکن پوری نے، بے حضرت شک بے شیخ شک، نظام بالکل، الدین اولیاء نے، حضرت علاء الدین قادر کلجری نے، حضرت بابا فرید گنج شکر نے، انہی کا نام نہیں ہے، اور انہیں کا نام غائب کر رکھا ہے۔ انہی کا نام غائب ہے۔ اور سنو، ہوں، یہ لوگ جو ہیں کافر بنانے میں لگے ہیں، مسلمان بنانے میں لگے، مسلمانوں کو نہیں، کافر بنانے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی۔ اگر کوئی نہیں مان رہا ہے، یہ مسلک کو نہیں مان رہا ہے، تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم بتاؤ آپ، اب مان لو ناسک کے لوگ بھوپال ہیں، وہ کبھی ہوں، انہیں نماز پڑھنا ہو تو بھوپال والے کہ کہاں جا رہا تو ادھر کہاں کہ مسجد کے نکل، باہر نکل، کہاں سے ہے کہ ناسک، باہر نکل تو یہاں سے، ہر سال نماز پڑھ نہیں، باہر نکل جا تو یہاں سے، کہیں بھی پڑھے، روڈ پہ پڑھ جا، کہیں بھی پڑھ۔ اب آج کل تو روڈ پہ بھی نہیں پڑھ سکتے، بالکل کیونکہ بالکل صحیح ویڈیو بنا بات۔ لیتے ہیں لوگ باغ غیر مسلم لوگ، پہلے تو روڈ پہ پڑھ لیتے تھے۔ ہاں، اب اگر نہیں ہو بھوپال رہا ہے۔ والے بھی یہی کریں، ادے پور سے آئے ہوئے ناسک نکلو، باہر نکل جانا اسی وقت۔ یہ انہوں نے لکھ رکھا ہے ناسک میں، ادے پور میں آیا تھا نا، ناسک بھی آیا ہوں میں، ادے پور اچھا، بھی آیا ہوں، تو دونوں میں نے مسجدوں میں دیکھا، ناسک کی جو مسجد ہے نا بس اسٹینڈ کے پاس ہاں، مزار ہے اس کے اندر، تو اس میں لکھا ہے کہ دیوبند والا اگر آیا تو نکل جائے، فوراً نکل جائے، اس طرح لکھا ہوا، ایسے ادے پور میں لکھا ہوا مسجد میں۔ صحیح بات ہے۔ ارے بھائی وہ اپنی نماز پڑھنے آیا، تم سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، نہ لے رہا نہ دے رہا، تو نماز تو پڑھ لیں دو اسے بیچارے کو کم سے کم۔
नमाज पढ़ने दो। और दूसरी बात यह है कि आप इतनी नफरतें करोगे तो अगर तुम मान लिया हम तुम ही हक पर हो तो सामने वाले को दावत कैसे दोगे? नफरत से तो कोई दावत कबूल करेगा नहीं। फिर इस्लाम कैसे फैलाओगे? इस्लाम की दावत क्या दोगे? इस्लाम कैसे फैलाओगे? नफरतों से तो फैला नहीं है, न फैलने वाला है। इस्लाम फैल कर रहा है, इससे तो और खत्म हो रहा है। हाँ, ये क्या फैला पाएंगे साहब? ये तो और खत्म कर रहे हैं। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, तो आप प्यार से उन्हें लो ना। वो आते हैं तो उन्हें समझाओ ना, दीन इस्लाम समझाओ, भाई ऐसा ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों को निकालते हो, लोगों को निकालते हो। यानी फरमाया उखरिजत लिलमोमिनीन, उखरिजत लिलमुस्लिमीन नहीं फरमाया मोमिनों को निकालते हो, मुसलमानों को नहीं, ये फरमाया लोगों को निकालते हो। यानी हमारा काम था इस्लाम की दावत देना और उनको इस तरफ लाना। और नफरतों से तो गुमराही और बनती जा रही है, और मतलब दुश्मनाई बनती जा रही है, उससे कोई फैज भी मिल नहीं रहा है। ना देवबंदियत खत्म हो रही है, ना बहावियत खत्म हो रही है। नहीं बताओ हो क्या रहा है? नहीं कुछ नहीं, दोनों आपस में एक दूसरे को काटा पीटा लगे हुए हैं। कुछ बिगाड़ पा रहे हो किसी का कुछ नफरतें करके? बल्कि इतना और हो रहा है, जो सही रास्ते पे लोग हैं वो भी भटके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो नमाज पढ़ने जाए तो कैसे पढ़ना है? नमाज पढ़ने जाने में डर लगेगा मस्जिद में, कहीं हमें भगा न दे। किधर जाएंगे? उधर जा रहे हैं तो उधर उनकी सुनो, इधर आ रहे हो तो इनकी सुनो। फिर आदमी करे तो करेगा। अनपढ़ आदमी की तो मुसीबत खड़ी कर दी है। ये सोहार के पास गांव है, नगलिया है, छोटा सा। मैं गया हूँ नगलिया, गाँव सा है, बड़ा सा है। सोहार से 6-7-10 किलोमीटर दूर होगा। मैं गया हूँ उस गाँव में, नगर से। वहाँ किसी देवबंद वाले ने नमाज पढ़ा दी। वो आदमी सुन्नी था जिसकी नमाज पढ़ाई शायद। अच्छा। तो उसने फतवा दे दिया, वहाँ से फतवा आ गया बरेली से कि सबके निकाह टूट गए, निकाह करो। ईमान खत्म हो गए, निकाह खत्म हो गए, ईमान भी खत्म हो गए। अगर हज किया है तो दोबारा हज करो फिर। एक बात तो ये भूल जाते हैं, उसमें ये भी है कि अगर हज किया है तो वो भी फिर दोबारा हज करना पड़ेगा, तजदीद हज करना पड़ेगा। तो अब बताओ कि जो आदमी नमाज पढ़ रहा है वो कोई काफिर की थोड़ी पढ़ रहा है यार। उसे थोड़ी मालूम है इसने क्या किया है। अगर कोई गुनाह किया होता इसने ऐसा, तो कोई भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। आप भी नहीं पढ़ोगे, हम भी नहीं पढ़ेंगे साहब। जैसे अगर मालूम हो जाए किसी के बारे में आपको कि हजरत अली का गुस्ताख है, तो आप क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ लोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। कोई भी मुसलमान नहीं पढ़ेगा। ऐसा कौन पागल हो गया है जो एकदम कुफ्र करेगा? अरे हजरत अली का तो मसला बहुत दूर है। कोई ख्वाजा का, कोई ख्वाजा निजामुद्दीन का भी गुस्ताखी कर बैठेगा तो भी उससे नफरत बढ़ जाएगी। हाँ, उससे बढ़ जाएगी। उसके पीछे उसकी भी नमाज नहीं पढ़ेगी फिर। क्योंकि अपने बुजुर्गान दीन की किसी की भी गुस्ताखी करेगा वो। ये बड़ी बड़ी हस्तियां तो छोड़ दो, ये छोटे छोटे लोगों की बात है, तब भी मुसलमान कबूल नहीं करेंगे उसे। अच्छा, दूसरी बात है कि जब वो जनाजा हो जाता है उसके बाद मसाइल पूछे जाते हैं, साहब ऐसे शख्स ने नमाज पढ़ा दी, क्या हुक्म है? जब वो आदमी दफन हो जाता है, जब पूछते हैं लोग बात, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी तुम नमाज जनाजा बन गया, नमाज जनाजा नहीं हुई, निकाह टूट गया। अब वो तो बगैर नमाज के दफन हुआ, उसकी जनाजे की नमाज ही नहीं, फर्ज किफाया है, वो तो फर्ज बाकी रह गया, वो तो दफन हो चुका। अब उसकी नमाज जनाजा कब पड़ी जाए? क्या ख्याल है? सही बात है। ऐसा ही होता है ना, एकदम तो कोई पूछता नहीं है जनाजे के बाद, दफन होने के बाद ये मसले मसाइल पूछे जाते हैं। सही बात है। तो बताओ, जब इसका मतलब बेनमाजी दफन हो गया। इनके फतवे से तो जितने हाजी मरते हैं अरब में, सब बेनमाजी दफन हो रहे हैं। वहाँ पर इनके इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। आप फिर ऐसी बातें जब सुनेगा नासिक वाला हो और बंदर वाला, उदयपुर वाला, तो कहेगा यार सही बात है यार, बेकार की बात है। नहीं, अब क्या है, जैसे मैं सुनता हूँ कभी अबू बकर सिद्दीक मौला अली पे बहस चालू है। ये मुद्दे आम पब्लिक में छोड़ने की जरूरत कहाँ से पड़ेगी? कोई पूछता ही नहीं है ये मुद्दे। कौन किसकी शान बड़ी है, किसकी शान छोटी है, ऐसा कोई पूछता है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं पूछता था। और जब पूछता नहीं तो आवाम में क्यों गुस्ताख बना रहे? एक साहबी का गुस्ताख बनेगा आदमी? सही बात है, सब साहबा को मानना जरूरी है। फिर सबका मानना जरूरी है। सबकी शान तो अल्लाह के पास है, अल्लाह जानता है किसकी शान बुलंद है, किसका क्या है। हमें तो आम पब्लिक को तो इतना मालूम है कि सब सहाबा हैं और सब हक पर हैं, सब मुसलमान हैं, सब रसूल के चाहने वाले हैं। बस 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 बस। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है वो तो अलग बात है, ये तो अल्लाह रसूल जाने। हाँ, समझे? तो ये तुम और मैं कौन होता हूँ उनको छोटा बड़ा करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, माशाल्लाह।
अब आप देखो नासिक से थोड़ा आप आगे आओ मालेगांव में, तो मालेगांव में 70% देवबंद वाले हैं, 30% बरेली है। और देवबंद वाले रहा ना मालेगांव में, वहाँ लड़कियों का मदरसा भी चल रहा है इनका बहुत बड़ा। तो कहीं देवबंदी है, कहीं बरेली है, कहीं दोनों बराबर है, तो चक्कर है ही साहब, दोनों को निभाना पड़ेगा ना साहब। ऐसी मुश्किलें खड़ी कर दी है। मौला अली की अगर कोई बात करता है, तो समझे, अहले बैत की बात करता है, बोले वो सिया और राबजी है, समझे, तुरंत इसीलिए कभी जश्न इमाम बाकर नासिक में नहीं हुआ, न जश्न इमाम जाफर हुआ, नासिक वाले कराएंगे भी नहीं जश्न। हाँ, अगर कोई मसला है हमसे पैसा ले लो, 20,000 10,000 50,000 जश्न इमाम बाकर करा, नासिक में तो मना कर देंगे नहीं। और ये हदबंदी ना जश्न आला हजरत करा तो देखेंगे, हाँ बिल्कुल कराओ, अभी हल करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और उसमें लाखों रुपया खर्चा भी होता है पब्लिक का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराते, हर साल कराते हैं, हर साल कराते हैं, पूरी दुनिया में कराते हैं, अमेरिका से लेकर। हाँ, लाखों रुपए का खर्चा आता है। जैसे इमाम बाकर, जैसे इमाम ज़ैनालसी, आप कराओ, मैं 10,000 रुपये दूंगा हर साल। अरे नहीं ये नहीं करें, या चुप हो जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। वही तो अगर आपने कह दिया जश्न इमाम मूसा काजिम कराओ तो चौंक जाएंगे कि जश्न इमाम मूसा काजिम कौन है। तो आप कहना लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर कि तुम इमाम मूसा काजिम को नहीं जानते। क्या लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर कि तुम इमाम मूसा काजिम को ही नहीं जानते, कितने बड़े इमाम है। नहीं, असल बात क्या है, जो इस्लाम के मैन कारकुन जो हैं, जिनकी बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए हैं इस्लाम के लिए, उनके नाम ये छुपा के रखते हैं। ये खुशखबरी सुनो, याद आ गई ये भी हाल। ये खुशखबरी सुना रहे हैं आपको। सुनाइए हजरत इरशाद। कल रात को मगरिब बाद हमने 12 इमामों का मैं तस्करा करता रहता हूँ, तो कल पहली बार टांडा रामनगर में, नैनीताल में आता, टांडा रामनगर में आज मुजाहिद मिले थे, उनके घर पे पहली बार 12 इमामों की फातिहा मैंने खुद दी। अच्छा, माशाअल्लाह। डॉक्टर नौशाद आलम साहब चिश्ती मनीमी, वो भी शरीक अलीगढ़ से आए थे, तो उसमें पहली बार फातिहा दी है मैंने 12 इमामों। वैसे तो फातिहा होती रहती है उससे पाक की और भी गरीब नवाज की, लेकिन ये 12 इमामों के नाम से पहली थी। मैंने सबके नाम लिए और सबके नाम लेकर बताए भी, थोड़े थोड़े हालात भी। इमाम मेहदी से लेकर इमाम हसन अस्करी, फिर इमाम नकी, फिर इमाम तकी, फिर इमाम अली रजा, फिर हजरत इमाम मूसा काजिम, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक, फिर हजरत इमाम बाकर, फिर हजरत इमाम ज़ैनुल फिर इमाम हुसैन इस्लाम, फिर हजरत इमाम हसन इस्लाम, हजरत अली करमल्लाहु करीम अलैहिस्सलाम। इस तरह सिलसिले वाले मैंने 12 इमामों के नाम बताए और सहाबा किराम के बारे में भी बताया मैंने कि दोनों का मामला जो है कि दोनों से हमें ताल्लुक रखना है, सहाबा किराम से भी, रह से। इस तरह से मैंने बताया तकरीब, थोड़ी देर तकरीब ही किया था। ये पहली बार, अब लोग सिलसिला शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। ताकि 12 इमाम शिया लोग मानते हैं, वो अपने ढंग से मानते हैं, हम अपने हिसाब से अहले सुन्नत वल जमात के हिसाब से मानेंगे। शियाओं का क्या हमारा लेना देना क्या है उन लोगों से? अगर वो गलती करते हैं तो हम उनके साथ छोड़ेंगे। ठीक है कि तुम इमाम हसन अस्करी के नाम का जलसा ही न कराओ कभी काशीपुर। हाँ, ये मेन पॉइंट है, उनका नाम लेके इमाम हसन अस्करी के नाम का जलसा नहीं कराया, जो दोनों मुफ्ती रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हम अपने दरबार वो एक और मुफ्ती ककराला के, उन्होंने नहीं करवाया और ये कराएंगे भी नहीं, मुझे लगता है। मैं 10,000 भेज दूंगा अगर ये कराए। जिस दिन जैसे इमाम हसन अस्करी कराए, मैं वादा करता हूँ मैं 10,000 रुपये भेज दूंगा। उनकी शान में तकरीर होना चाहिए, उनकी शान बयान होना चाहिए। मैं भी मिस्टेक है, मैं भेजूंगा इंशाल्लाह 10,000 रुपये। वो सब ये पैसे के मसले हैं, अपने अपने पीरों को नाम ज्यादा लाएंगे मैदान में, समझे। तो वो कभी जश्न इमाम अली रजा नहीं करवाएंगे वहाँ के कोई भी इमाम। अगर कराए तो मैं 20,000 रुपये देने को तैयार, या दिलवा दूंगा, 50 भी दिलवा दूंगा लोगों से। लेकिन कोटा का कोई भी इमाम तैयार नहीं होगा, क्या नहीं करा रहे। तो आवाम पूछे भैया ये क्या अतर हुसैन काजी क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, क्या है कुछ बताओ ना। हम बुला रहा है, उसे बुला रहा है, आलिमों को बुला। वो जो डंके की चोट पे कह रहा है कि इमामों को तुम बताओ क्या है, क्या ये अहले सुन्नत के इमाम नहीं है, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी। लाओ पूरी दुनिया के आलिमों को लाओ, हम बुलाए, हम हमारे सामने बैठाओ। तो फिर इमाम चौंक पड़ेंगे, कहेंगे नहीं वो बात नहीं है, वो अतर हुसैन काजी ये है, वो है, वो और तरह से चक्कर लेके फिर मेरी बात को अड़ंगा लगा दें कि नहीं वो ये बात नहीं, वो नहीं है, हम तो मानते हैं इमाम अली रजा को, लेकिन फिर मानते हो तो फिर कराओ ना उनके नाम को जलसा। वो कह रहे हम 50,000 भी भिजवा देंगे, लाख भी, नहीं जैसे आला तो करा लेंगे, अगर मैं करा लेंगे, इनके नाम पर नहीं करा।
तो फिर अरे वहाँ से इसका रोजी मतलब रोटी तुम चल हमें रही है गुमराह ना कर रहे आगे। हो। अब हम खुद इमाम अली रज़ा की नाम की मस्जिद कोटा में बनवाएंगे, बुधनी बनवाएंगे, इमाम हसन अस्करी के नाम की आओ रोक के देखो। जिस दिन पब्लिक इस बात पे आ गई ना, देखना उस दिन इंकलाब हो जाएगा। जब हम अपने हिसाब से जलसे कराएंगे, तुम कराओ न कराओ, हम करवाएंगे। हम बिल्कुल अतर काजी से मशवरा करके बुलवाएंगे, और भी लोग ऐसे पैदा हो गए, लाखों की तादाद में अब ऐसे लोग पैदा हो गए। नहीं, अब बहुत हो गए, अब अभी लोगों को समझ में आने लगा ये मोबाइल से। इमाम अली रज़ा के नाम के जलसे में जब मैं समझूंगा कि कौम जागी, जिस दिन इमाम हसन अस्करी के नाम के हिंदुस्तान में हो गया, जब मैं समझूंगा कौम जागी। नहीं, कौम तो जाग रही है, समझ रही है। और जिस दिन हजरत खालिद बिन वलीद के नाम का जलसा हुआ, या हजरत अबू हुरैरा के नाम का, ये साहबा के नाम के लिए करा हुआ है, अहले बैत के नाम के दोनों को। हजरत मैं बता रहा हूँ आपको, ये अपने अपने सिलसिलों पे इनकी मेहनत और इनकी तकरीरें चल रही हैं। तो इनका काम तौहीद पर नहीं हो रहा है। देख लेना, आप नासिक वालों से लिख के रख लेना, नासिक वाले कभी जश्न इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा काज़ी नहीं करवाएंगे। अभी एक चीज मेरे समझ में आई हजरत, काजी ऐसा कह रहे हैं, तो अब क्या बता, आपकी क्या मर्जी है? तो नहीं, ये तो हमारे इमाम है, अहले सुन्नत के भी इमाम, तो फिर आप इनके नाम का जलसा क्यों नहीं करवाते पूरे दिन? क्यों नहीं कराते? फलाना कहना, ये फलाना ढमाकी छोड़ बात कि फिर खुतबे में भी तो फिर इमाम हसन हुसैन का नाम आता है, वो क्यों लेते हो? बिल्कुल। इसका होता तुम उनकी औलाद को बुलाना चाह रहे हो, तो मानते रहे, उनकी औलाद को फिर तुम लोग बुलाना चाह रहे हो। अगर मैं 2 साल इनकी खिदमत में न रहा होता इमाम बाकर की, तो मैं तो बर्बाद हो जाता। इमाम अबू हनीफा ने ये कहा था। लेकिन जिससे उदयपुर वाले इमाम हसन अस्करी कराएंगे जश्न इमाम हसन या इमाम मूसा काज़ी, जब मैं समझूंगा उदयपुर वाले अब जाग चुके। बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं कह रहा देवबंदी हो जाओ, मैं नहीं कह रहा बरेलवी हो, मैं कह रहा अहले हदीस, सीधे सीधे मुसलमान है, अहले सुन्नत वल जमात पर। 1400 साल में कौन से देवबंदी बरेलवी अहले हदीस थे? सब मुसलमान सुन्नी थे। सही बात है। ये सब लगा के कौम को जाने किधर से किधर उछल रहे हैं, कोई अपने फिर। आज हमारी मुलाकात एक बहुत बढ़िया आदमी से भी 2 बार हज कर आए थे, जनाब हाजी शब्बीर हसन साहब, मिस्तर वाला में रहते हैं। अच्छा। अब्बास हुसैन साहब मिस्तर वाला, बहुत जबरदस्त शख्सियत है साहब। उन्होंने भी आंखें खोल दी रहते, आपने अगर हिंदुस्तान में हो जाए तो इनकलाब हो जाएगा। मिस्तर वाला में जनाब अब्बास हसन साहब रहते हैं, 2 बार हज कर आए। अच्छा। यानी वो दोनों को लेके चलने का मामला मिजाज है कि देवबंद भाई दोनों को लेके चलो, जो अच्छी बातें मान लो यार, जो इख्तलाफ वाली बातें क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने दोनों को लेके जलसा भी करवा दिया, देवबंद बरेली के आलिमों को बुला के जलसा भी करवाया। अच्छा। तो मुझे बड़ी खुशी, अभी हाल मिलके हम बैठे हुए हैं बस गाड़ी में, उनके बेटे गाड़ी चला रहे हैं। जनाब क्या नाम है आपका? बाबू खान। हाँ, अशरफ। जनाब मोहम्मद असलम साहब ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले आदमी इस इलाके में ऐसे मिले जो उम्र दराज नहीं है, 2 बार हज कर आए, 80-85 की उम्र है, बेचारा उसके साथ फूल रहा है। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि बहुत ऊंची नजर रखते हैं, बहुत ऊंची नजर। यही है कि भाई सब फिरकों से मिलो, जो अच्छी बात है ले लो यार, ये झगड़े फसाद पैदा मत करो, जिसको जो करना करो, लेकिन ये कौम में इख्तिलाफ पैदा मत करो। अल्लाह ने मना फरमाया, वातसिम बिहब्लिल्लाह जमीआ, फरमाता है अल्लाह सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो, अल्लाह तफर्रुक। हाँ, देखो हमारे ड्राइवर साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के जनाब नरेंद्र मोदी साहब, वो अगर एक आवाज लगा देते हैं तो लोग एक हो जाते कि नहीं? है कि नहीं साहब? बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये हाल है कि हजारों आलिम अलग अलग खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, इधर आ जाओ उधर जा। जैसे गोश्त की दुकान लगी है कि इधर से ले लो, इधर बढ़िया बकरा है, वो कह रहे इधर बढ़िया बकरा है, अरे उधर टांड हुई है, उधर टांड, अरे उधर भेड़ है, उधर मत, इधर आ जाते। एक दूसरे की किताबों में गलतियां बता रहे हैं कि वो हिफ्ज़ुल ईमान में लिख के गए, तक़वीज़ुल ईमान में लिख के, वो कह रहा फतावा रज़िया में से लिखा, वो कह रहा मकतूब में से लिखा है। ये मुनाज़े में दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, देवबंद बरेली वाले। कोई जीतता हारता नहीं, न कोई अपनी हार मानता है, सब अपने आप को जीता हुआ मानते हैं कि हम जीत गया साहब मुनाज़े। हाँ, वही चल रहा है। आज तक मुनाज़े में कोई जीता नहीं है, सबने अपने आप को जीता माना है। आप भी माशाल्लाह तजुर्बा कर रहे हैं, आपने खुद देखा हुआ है। क्या कहा? मैं बहुत देख रहा हूँ हजरत, ये किसी पॉइंट में देवबंद वाले भारी पड़ते हैं, किसी में बरेली भारी पड़ते हैं, यानी पॉइंट सेट मामले होते हैं ना, तो किसी में भारी बरेली भारी पड़ते हैं, देवबंदी भारी पड़ते हैं। सबके अपने अपने पॉइंटों में तैयारियां हैं। बस मैं तो कहता हूँ अरब दालों को देखो, अरब में कोई फिरका नहीं है, ना देवबंदी, ना बरेली, ना अहले हदीस, कुछ नहीं है वहां पर। मैं अभी इसी साल गया था उम्रा करने, कुछ नहीं, ना वो अहले हदीस है, पक्के कट्टर सुन्नी मुसलमान है वो लोग।
खालिस दीन इस्लाम को मानते हैं बस। अब देखो थोड़ी बहुत कमी सब में है, बादशाह से हमें क्या मतलब, बादशाह में गलती है तो उसकी वजह से हम पूरे अरब वालों को थोड़ी कहेंगे। अल्लाह के फरमान अरब वालों से 3 वजह से मोहब्बत करो, मैं अरबी हूँ, कुरान अरबी में है, अहले जन्नत वालों की जबान अरबी होगी, और जो मुसलमान होगा वही हाफिज कुरान होगा। मैं तो ये जानता हूँ देवबंद वाले भी हाफिज हैं, बरेली वाले भी हाफिज हैं, जिसके सीने में ईमान है वही कुरान का हाफिज होगा बस। इसीलिए शिया हाफिज नहीं होता, गुस्ताख साहबा है, जब गुस्ताख साहबा नहीं होता तो गुस्ताख रसूल जो कतई हाफिज नहीं होगा। बात करेंगे हम, ठीक है साहब? ठीक है हजरत।